यहाँ से गाड़ियां आ रही है, यहाँ से जूनियर एनटीआर भाई सब तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवी। भाई सबसे पहले तो आप बताओ, आपका रिपोर्टेड बजट इस फिल्म का 400 करोड़ रुपए, पर ये कौन बताएगा कि इस फिल्म में ब्रैड पिट और वरुण धवन का भी रोल है? तुम्हें पता था? War 2 is the third installment in the YRF spy universe, the same spy universe that YRF had announced along with Pathaan almost 3 years ago. अब इस फिल्म को लेके बहुत सारे सवाल थे हम सबके दिमाग में। ब्रह्मास्त्र के आउटकम के बाद was अयान मुखर्जी the right choice to anchor a project like War 2 and do justice to its action? क्या War 2 के डायलॉग ब्रह्मास्त्र के डायलॉग से ज्यादा बेटर होंगे? क्योंकि अयान मुखर्जी ने अपनी राइटिंग टीम के साथ मिलकर ब्रह्मास्त्र में जो रायता फैलाया था वो हम सब ने देखा था। और क्या जूनियर एनटीआर जैसे बड़े एक्टर को कास्ट करने के बाद would the makers be able to do justice to his fans? This is a spoiler-free review only to help you guys decide whether to spend big bucks on this movie this weekend or not. So let's start with diving into the things that I liked about this movie. The movie introduces us to the world of a clandestine organization named Kali, who wants to introduce their Trojan horses in all major government facilities around the world. How Hrithik and Junior NTR come into this picture and what sets them off against each other is what this movie is all about. देखो, be it any movie or even an action movie, ये movies तभी वर्क करती है जब इनका emotional core बहुत strong हो। John Wick had it in the form of revenge for the dead dog. Even in the movie Kill, the emotional core was the loss of a loved one and the revenge that follows after that. And I'm happy to report that Ayan Mukherjee builds a very solid emotional core in War 2, जो कि कहीं ना कहीं missing था उनकी ब्रह्मास्त्र में। It's this very core that defines the actions of both our leading men throughout the movie. And because of this quality only, we are able to empathize with both these characters at some level or another. Both Hrithik Roshan and Junior NTR have absolutely killed it with this movie. Hrithik Roshan, I must say, has never looked so good. This is his peak looks era. Junior NTR has played his role with such psychotic undertones that you will never know what his next step is going to be. You're going to double doubt yourself whether to trust this guy or not. This is beautifully assisted by some good dialogues by Abbas Taiwala. Honestly, a Pakistan bashing narrative lately was becoming too tiresome for me. Even Tiger 3, where its problematic Pakistan narrative came under a lot of criticism. But thankfully, War 2 में ऐसा कुछ नहीं है. The enemy here is a much bigger entity working on an international scale. ऐसा कुछ हमने recently Special Ops 2 के साथ भी देखा था, जहाँ पे कि the threat came from China. Cinematography by Benjamin Jasper and the color palettes used to capture this globe-trotting actioner are pretty good, especially the night shots. The slightly overcast skies and the mood lighting adds to the thrilling element of the movie. But sadly the same cannot be said about the day shots, क्योंकि इन लोगों ने सारे के सारे day shots क्लोज अप लगा के क्रोमा पे शूट कर दिए हैं और कहीं कहीं पे तो कैरेक्टर्स की स्किन टोन भी बर्न आउट हो रही है। भाई सबसे पहले तो आप बताओ, आपका रिपोर्टेड बजट इस फिल्म का 400 करोड़ रुपए और उसके बाद भी आपके डे शॉट्स और वीएफएक्स इतने खराब कैसे दिख सकते हैं? इस फिल्म के ट्रेलर और टीजर में जो आपने वीएफएक्स की क्वालिटी देखी थी ना, इस फिल्म में एग्जैक्टली वही है। कहीं अगर आपको लग रहा हो कि इन्होंने फाइनल प्रोडक्ट बनाते बनाते वीएफएक्स को थोड़ा और इम्प्रूव कर दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर ये लोग प्रीमियम टिकट चार्ज करके ऑडियंस को आईमैक्स बुला रहे इस टाइप का वीएफएक्स दिखाने के लिए। There is an entire sequence of a car atop a speeding train और इतने बुरे तरीके से वीएफएक्स लगा के इतने बुरे तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया, मैं क्या बोलूं। अब इसके दूसरे एक्शन सेट पीस की बात करता हूँ, जो कि मिड एयर प्लेन के ऊपर है। इस पूरे सीक्वेंस पे तो जो इन लोगों ने फिजिक्स के मजे लिए हैं, भाई साहब मैं क्या बताऊं। एक हीरो डायरेक्टली ऊपर के प्लेन से जंप मार के नीचे के प्लेन पे आके लैंड कर जाता है, दूसरा हीरो विदाउट एनी हार्नेस प्लेन के ऊपर खड़ा होकर लोगों से लड़ रहा है। फिर कुछ होता है, किसी को धक्का लगता है, वो प्लेन से उड़ के नीचे गिर जाता है। ये दोनों हीरो हवा में उड़ रहे होते हैं और पता नहीं कैसे सडनली एक प्लेन के अंदर आके लैंड कर जाते हैं, मुझे समझ नहीं है। ऑल दिस ब्रिंग्स मी टू द कंक्लूजन कि जब इन लोगों ने ये सारे एक्शन सेट पीसेस पेपर पे लिखे होंगे तो बहुत एम्बिशियस लगा होगा, बट एग्जीक्यूशन तक आते आते ये सारी चीजें इतनी आउटरेजियस हो गई। आई किड यू नॉट, द क्वालिटी ऑफ बोथ दीज एक्शन सेट पीसेस बिलोंग नोवेयर क्लोज टू अ 400 करोड़ बजट मूवी। फिल्म ऑल्सो स्टार्स कियारा अडवाणी। अब इनको तो आपने ट्रेलर में देखा ही था, अब वहाँ पे जितना रोल था उतना ही है फिल्म में, उससे ज़्यादा कुछ खास है नहीं। कुछ पायलट होती है, फिर रॉ की कोई एक स्पेशल यूनिट अनाउंस होती है, फिर ये उसका पार्ट बन जाती है, और फिर कुछ ब्रीफिंग्स होती हैं जहाँ पे कि वो साइड में खड़ी हुई कंफ्यूज सी लगती है। इंटरवल के बाद एक गाना आ जाता है जहाँ पे कि शी डांसेस वेल विद ऋतिक, और बस उतना ही है, उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। भाई वॉर 2 में जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन गो टो टू टो अगेंस्ट ईच अदर, ये तो पता था, पर ये कौन बताएगा कि इस फिल्म में ब्रैड पिट और वरुण धवन का भी रोल है? तुम्हें पता था? अब मैं इस फिल्म में तुम्हें ऋतिक के एंट्री सीन के बारे में बताता हूँ। एक पार्टी चल रही होती है जहाँ पे बहुत सारे जापानीज याकूजास हैं और सडनली ऋतिक अराइव्स देयर टू किल देयर बॉस,
और ये लोग क्या करते हैं, उसके पीछे अपना पालतू वुल्फ छोड़ देते हैं। वुल्फ यहाँ से आता है, ऋतिक यहाँ से आता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों के आंखों के एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट्स लगते हैं, और फिर पता नहीं क्या होता है, वुल्फ हैज अ सडन चेंज ऑफ हार्ट, हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद फिर दोनों मुड़ते हैं, स्लो में भाइयों की तरह वॉक करते करते और यकूजास की तरफ जाते हैं उनको पेलने के लिए। अबे वुल्फ का सडनली हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? तो इन दोनों की कोई बैक स्टोरी तो नहीं? अब या तो फिल्म मेकर्स ने इसके बारे में सोचा नहीं, या दे प्लांटेड अ वेरी स्मार्ट ईस्टर एग इन दिस। हो सकता है ये वुल्फ और कोई नहीं, भेड़िया का वरुण धवन ही हो। वरुण धवन यहाँ से है, ऋतिक यहाँ से है। सडनली वरुण धवन ने ऋतिक को देखा और बोलता, अरे ऋतिक सर आप हैला। बट यहाँ पे इस एक्शन सेट पीस के पीछे क्या रीजन था, उसके क्या रिपरकशंस थे, हमें कोई आइडिया नहीं लगता। इवन वो वुल्फ आया, उसके साथ बैठा, हाउल किया, फिर वो निकल गया। इसका आगे की स्टोरी से कोई रिलेशन नहीं है, ना ही उस वुल्फ की कोई आगे कोई अपीयरेंस है। आई ब्रिंग टू योर नोटिस अ सिमिलर सीन इन थलपति विजय's लियो, जहाँ पे कि एटलीस्ट ही पुट्स इन द एफर्ट टू टेम दैट बीस्ट इन द इनिशियल पोर्शंस ऑफ द मूवी। और ये बीस्ट जब बाद में उसकी फैमिली को बचाने आता है तो यू कैन रिकलेक्ट एंड कनेक्ट द डॉट्स कि अच्छा वो हुआ था तो इसका रीजन ये है। अब आपको जूनियर एनटीआर के एंट्री सीन के बारे में बताता हूँ। एक रेस्क्यू मिशन होता है जहाँ पे कि द फोर्सेस नीड टू स्टॉर्म इन एंड रेस्क्यू द होस्टेजेस। और पता क्या चलता है, ये भाई साहब अकेले एक मिलिट्री ग्रेड ड्रोन पे नंगे सिर्फ पैंट पे लटकते हुए थिक कवर ऑफ क्लाउड से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं और सीधा शिप पे आके जंप करते हैं। भाई मुझे नहीं पता था ड्रोन के साथ ये सब भी पॉसिबल हो सकता है, वरना आज अमेज़न पूरे जापान में ऊपर से स्टोर्स ड्रॉप कर रहा होता। आपको ट्रेलर से वो वाला सीन तो याद होगा ना, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को स्पीड बोट्स में चेज कर रहे हैं। आई किड यू नॉट, देयर इज अ लेजिट सीन इन दिस मूवी जहाँ पे कि मैं ये चेज सीक्वेंस देख रहा था, सडनली मैं आंख झपकाता हूँ, जैसे ही आंख खुलती है व्हाट आई सी, जूनियर एनटीआर भाई साहब पूरी की पूरी स्पीड बोट को लेके एक F1 रेसिंग ट्रैक के बीचों बीच है। यहाँ से गाड़ियां आ रही है, यहाँ से जूनियर एनटीआर भाई साहब तड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवी। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि F1 मूवी में एक रेस के टाइम ब्रैड पिट क्यों अपनी कार स्टार्टिंग पॉइंट पे स्टॉल करके रहता है। तुम्हें क्या लगा वो अपने टायर गर्म करा था? भाई उसे पता था आगे रेस ट्रैक पे जूनियर एनटीआर भाई साहब घुसाए हैं। ब्रैड पिट थे तो कहीं ना कहीं इस मूवी में, बस वो कैमरा के सामने नहीं आए, वरना इस मूवी का बजट 400 करोड़ से सीधा 1000 करोड़ हो जाता। ये स्पाई यूनिवर्स की थर्ड ऑफिशियल एंट्री है, और अगर मैं पठान से काउंटिंग करना शुरू करूं तो, बट उसके बावजूद भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरे स्पाई यूनिवर्स के थ्रेड्स अभी भी टाई अप करना शुरू नहीं कर पा रहे हैं। मे बी द मेकर्स हैव नॉट थॉट दैट मच अहेड इनटू द फ्यूचर, और दे आर स्टिल फिगरिंग इट आउट हाउ टू play it out. But yeah, there's a post-credit scene that gives you a glimpse of Alpha, which is the spy universes and Alia Bhatt's next forthcoming movie. So overall, War 2 is a movie that is a bit better than Pathaan. That's not saying much. But if this weekend the entire idea is to go for a popcorn flick with your family or your friends, you can very well go along and have some mindless fun in the theaters. It is definitely going to generate big box office numbers, at least over this weekend. How it stands out in the forthcoming days, it's yet to be seen. But it's not exactly my cup of tea. How did you find this movie? Do share your opinions in the comment sections below. Until next time.